So good morning all. We had already started with the chapter of social responsibilities of business. So as I told you already, that there are two schools of thought. One in favor of businessmen fulfilling its social responsibility, and another school of thought says that the only objective of a businessman is to earn profit, maximize profit, and social responsibility is none of the objectives of the business. So we had already discussed arguments in favor of social responsibility. Now we are putting a case forward against social responsibility. That is, we are now looking at the arguments of those people who say businessmen should not fulfill its social responsibility. We had already discussed two of the arguments, बेटे उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? One we had done violation of profit maximization objective. So this is very simple कि ये जो लोग कह रहे हैं कि बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, ठीक है, और वो प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज कर सकता है? अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा के, अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करके. So that is the only objective of businessman. If he looks for the social welfare, so this would be the violation of profit maximization objective of the businessman, right? Second argument, let's discuss burden on consumers. Okay, so bete social responsibilities, it also involves cost, financial investments. No businessman will bear the burden of increased expenses. You consider yourself as a businessman. अगर आपका काम 1 लाख की इन्वेस्टमेंट से चलता है, लेकिन अगर आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, तो डू यू थिंक यू वुड बी विलिंग टू डू दैट? No businessman would like to bear the expenses of additional investment. ठीक है? So what will they do to maintain their profit margin? They would shift the burden to the customer. वो जो एडिशनल उनके ऊपर बर्डन पड़ रहा है कॉस्ट का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए, इसको वो कंज्यूमर को शिफ्ट कर देंगे. कैसे शिफ्ट करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ हायर प्राइसेस. ठीक है, तो जिस कमोडिटी के लिए आपको 10 रुपए देने पड़ते थे, अब आपको 12 रुपए देने पड़ रहे हैं. वो क्यों? क्योंकि जो कॉस्ट बढ़ी बिजनेसमैन की अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए, उसका बर्डन उसने कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट कर दिया. ठीक है, सो व्हाइल द बिजनेस गेट्स रिकॉग्निशन एंड better image building while performing the social responsibility, it is the customer who has to bear the cost. एक कंपनी का नाम हो रहा है वाजीवा. इस कंपनी ने देखो स्पोर्ट्स प्रमोट कर रही है, इसने जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको किट्स प्रोवाइड की है, यूनिफॉर्म प्रोवाइड की है, उनको 3 टाइम का खाना प्रोवाइड करती है. या कोई कंपनी है उसने स्कूल्स खोले हुए हैं, कॉलेजेस खोले हुए हैं, हॉस्पिटल्स खोले हुए हैं. ठीक है, तो या एक ऐसी कंपनी है जिसने पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अपनी फैक्ट्री में एक प्लांट लगाया हुआ है. सो नाम तो उस कंपनी का हो रहा है, उस फर्म का हो रहा है, लेकिन इसका बर्डन क्या सच में वो बियर कर रही है इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट? नो, इट इज शिफ्टिंग इट्स बर्डन टू द कंज्यूमर in the form of higher prices. So don't you think it's unfair to burden the consumers in the name of social responsibilities? Is it fair that businessman has to fulfill social responsibility, so you have to pay higher prices? Are you in favor of this thing? Those who are in favor, okay, those who are not in favor, please raise your hands. आप में से कोई ऐसा है तो हैंड रेस करो जो कि हायर प्राइसेस देने को तैयार है और नाम कंपनी का हो रहा है. नन ऑफ यू. ठीक है, सो अगर कोई है भी तो अ फ्यू वुड बी देयर जो कहते हैं ठीक है हमें क्या फर्क पड़ता है,
कम थोड़े से प्राइसेस बढ़ जाएंगे, लोगों का भला होना चाहिए. दैट इज अ वेरी few people, a small segment of the society would be in favor of this. ठीक है, so that's why the argument stands very much valid. Why burden consumers with higher prices? ठीक है, तो बिजनेसमैन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहा है और बर्डन कंज्यूमर के ऊपर पड़ रहा है. सो दिस शुड नॉट बी डन. ठीक है बेटे, क्लियर? So let's see the next argument, which is lack of social skills. बेटे देखो, जो हमने पहले किया था, बिजनेसमैन के पास रिसोर्सेज हैं, बिजनेसमैन के पास ये स्किल है कि वो थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देता है. दैट इज ऑल ट्रू, बट देन these are business problems he is dealing with. These are usually solved with the one aim, which is cost minimization and profit maximization. एक बिजनेसमैन हमेशा ऐसे सोचता है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसकी कॉस्ट कट हो जाए और उसका प्रॉफिट बढ़ जाए. लेकिन ये जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, ये फाइनेंशियल मॉडल से सॉल्व नहीं होती. टू सॉल्व these social problems, one needs to clearly understand the needs of the society, the problems of the societies. Businessman, he is not expert in that. He lacks expertise to understand the cause and effect of such social problems. So it would be better if these problems are solved by specialized agencies. जैसे एक बिजनेसमैन ने कहा, ठीक है, जो गरीब बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पाते, तो वी विल ओपन अ स्कूल फॉर देम. तो उन्होंने एक सोल्यूशन निकाली, लेकिन क्या ये प्रॉब्लम इतनी जल्दी सॉल्व हो सकती है? नो, इट्स अ रियली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. The only reason for the poor children not going to school is not that they cannot afford it. There are various other reasons also. They have to take care of their siblings at home, or they have to go with their parents to supplement their income. Okay, so or they do not have such kind of mental level, their parents cannot afford extra tuitions for them. ठीक, आप देखो, आपके पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, आपका बेस इतना अच्छा है, फिर भी आप लोग अपनी क्लासरूम टीचिंग को ट्यूशंस के साथ सप्लीमेंट करते हैं. ठीक है, लेकिन ये बच्चे जो हैं उसको अफोर्ड नहीं कर पाते. So just by mere opening the schools, you cannot solve the problem of illiteracy. ठीक है, one step is there, but then वही बात हो गई कि अगर हम रियल सेंस में सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना चाहते हैं, तो बिजनेसमैन इज नॉट द राइट एंटिटी. ही लैक्स सोशल स्किल्स. राइट बेटे, इज इट क्लियर? तो गिव अ थम्स अप, and if you want me to explain it again, just raise your hand. No response I'm getting. What happened? Okay, fine. Right. Okay, so let's move on with the last argument, which is lack of broad public support. Lack of broad public support. बेटे, जो बिजनेसमैन है या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, it is always seen as a profit making enterprise. ठीक है, आप भी एक बिजनेस की बात करते हैं, हम कोई भी बात करते हैं, हम कहते हैं टाटा है, बिरला है, तो आपके अंबानीज हैं, हमारे माइंड में क्या आता है? दीज आर प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइजेस. सो इन जनरल जो पब्लिक है वो फील करती है कि बिजनेसमैन जो भी करता है उसमें उसका फाइनेंशियल बेनिफिट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है. सो सोसाइटी जो है वो बिजनेसमैन का इंटरफेरेंस नहीं टॉलरेट कर पाती है, या उनके ऊपर इतना फेथ नहीं रख पाती है कि वो हमारी भलाई के लिए कुछ करेंगे. दे ऑलवेज हैव दिस इन माइंड, अच्छा इन्होंने स्कूल खोला है, इसके पीछे इनका कोई मोटिव होगा. ओके, दे आर प्रमोटिंग स्पोर्ट्स, so they might be having certain motive behind it. It must be to promote their
sales or something, or to build up their public image. So there is lack of broad public support. यानी बिजनेसमैन कुछ करना चाहता भी है तो भी सोसाइटी उसको सपोर्ट नहीं करती, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाती और उसको कोऑपरेट नहीं करती. ठीक है. So such things create hindrance in the way of businessmen performing social responsibilities. ठीक है. हम एक रिलीजियस इंस्टीट्यूट के ऊपर या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फेथ रख लेंगे, लेकिन हम एक बिजनेसमैन के ऊपर, चाहे वो कितना बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट क्यों ना हो, हमें लगता है ये सब दिखाने के हैं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और इनके पीछे इनका कोई ना कोई मोटिव होगा. So majority of the public thinks like this, so which means they do not get the broad public support. ठीक है. So that's why this school of thought is not in favor of businessmen being fulfilling its social responsibility. They are of the view businessmen is that, you know, segment of the society, business firms is that segment of the society which deals with the production of goods and services, thereby earning profit. They should continue doing that. Social responsibility is not the cup of tea for businessmen. Okay. Now let's discuss what are the various kinds of social responsibility. बेटे अभी तक हमको ये पता चल गया कि अपने ग्रोथ के लिए, इवन दो यू नो दैट वाज अ डिबेट काइंड ऑफ थिंग, बट आज के टाइम पर, ओके यस आयुष, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम बेटे? यू रेज योर हैंड. Any child having any problem bete? I guess it was by mistake. Okay, so debate हमने देख लिया, arguments in favor किया, arguments against किए. So I'm asking you, do you think a business firm should fulfill its social responsibility? What is the reality of social responsibility? आज जिस टाइम पे हम रह रहे हैं, ठीक है, कंटेम्परेरी टाइम्स जो है हमारे, तो आपको क्या लगता है क्या रियलिटी है? हमने सुन लिया, कुछ कहते हैं कि होनी चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं, सोशल साइंटिस्ट कहते हैं नहीं फुलफिल करनी चाहिए. लेकिन व्हाट इज हैपनिंग टुडे, और व्हाट इज योर व्यू पॉइंट? हाउ वुड यू कंक्लूड द डिबेट? एनीवन? यस ईशा. What do you think? No one is engaged in this social responsibility. Okay, we consumer also have the social responsibility towards the society also, and we as well as businessmen, they are not engaged in social responsibilities. Okay, that's your viewpoint, so I appreciate it. Anyone else bete? Girl? All right, so let's have a discussion at Isha's viewpoint. She says कि सोसाइटी का जो हर मेंबर है, चाहे वो कंज्यूमर है चाहे वो प्रोड्यूसर है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड सोसाइटी, लेकिन आज के टाइम पे कोई भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर रहा है. ठीक है, तो शी इज पार्शियली करेक्ट. वी एज कंज्यूमर्स, हम जो इंडिविजुअल एंटिटीज हैं, हमें सब कहते हैं प्लास्टिक बैग्स नहीं यूज करो, है ना, इलेक्ट्रिसिटी सेव करो, हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी फुलफिल नहीं कर पाते हैं. लेकिन बेटे जो बिजनेसमैन है, स्पेशली जो कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, you know, they are legally required to fulfill their social responsibilities, and yes they are doing so. maybe आप अभी छोटे हो, आप अपने आसपास इतना नहीं देखते हो, आप बुकिश नॉलेज से भी बाहर आओ बेटे, तो आपको पता चलेगा. आप देखते हो कितने जो मैचेस हैं, they are being organized by big corporate houses,
कितनी ट्रॉफीज, पेप्सिको कितनी ट्रॉफीज ऑर्गेनाइज करती है। फिर मैंने आपको उस दिन भी दो एग्जाम्पल दी थी कि आई वेंट टू टाटा वेस्ट साइड शोरूम, राइट, and they asked me to donate something for child relief, and they said whatever you will donate we will put in the same amount of money. तो अगर मैं उनको 10,000 रुपए देती हूँ तो 10,000 रुपए वो अपनी तरफ से डाल के चाइल्ड रिलीफ में कंट्रीब्यूट करेंगे। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल मैंने आपको दी थी क्लासमेट बुक्स की। तो जो क्लासमेट की नोटबुक्स हैं, स्टेशनरी आप लेते हो, उसके पीछे लिखा होता है कि आप इसकी आप जितने की ये ले रहे हो उसमें से इतने रुपए जो है एक फंड में जा रहे हैं। बेटे these are the examples of corporates being fulfilling their social responsibilities. So yes, today the consumer not only expect a good quality product at a reasonable price, but he also demands responsible conduct from the business. आज का कंज्यूमर बिजनेसमैन से सिर्फ यही नहीं एक्सपेक्ट करता कि हमें अच्छा प्रोडक्ट मिलता जाए, अच्छे प्राइस पर मिलता जाए, वो एक बिजनेसमैन से अच्छा कंडक्ट भी डिमांड करता है। अगर आपको पता चले कि आज आप जो स्टेशनरी या यूनिफॉर्म कंज्यूम कर रहे हो वो बहुत अच्छी क्वालिटी की आपको बहुत सस्ते दामों में मिली, लेकिन अगर आपको पता चले कि उसको बनाने में कोई 10 साल से कम बच्चे की मेहनत लगी हुई है, उसको एक्सप्लॉइट किया गया है, ठीक है, सो शायद आप उस चीज को दोबारा से उस प्रोड्यूसर से नहीं खरीदोगे। सो यू ऑल्सो डिमांड अ गुड कंडक्ट फ्रॉम दी बिजनेस। सो कंज्यूमर के एटीट्यूड में चेंज आया है, जिस करके बिजनेसमैन हैव ऑल्सो स्टार्टेड फुलफिलिंग देयर सोशल ऑब्लिगेशंस, ठीक है। So while they are earning, good profit for their survival, they have also started assuming their social obligations. So बहुत सारी organizations ऐसी हैं बेटे जो social cause के लिए अपने profit का कुछ हिस्सा distribute करती हैं। Anyone of you heard of Sudha Murthy? Narayan Murthy's wife, the founder of Infosys. No one? So बेटे today you search her name, कोई Facebook पे या YouTube पे आप देखना, तो Infosys जो इंडिया की एक बहुत बड़ी MNC है जिसको नारायण मूर्ति was one of the founder member. Her wife Sudha Murthy, she is an engineer, first woman engineer of the India, and she is engaged in such social causes. So she dresses up very simply. She does not spend any extravagantly. तो वो बहुत उनकी कंपनी जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत ज्यादा बिलीव करती हैं, अपने प्रॉफिट का बहुत ज्यादा हिस्सा सोशल कॉजेज में डोनेट करती हैं, ठीक है। सो विप्रो, इन्फोसिस, HCL, टाटा, ये सारी कंपनीज जेन्युइनली अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सोसाइटी की डेवलपमेंट में लगाती हैं, ठीक है। टाटा का एक हॉस्पिटल है, कैंसर हॉस्पिटल, जिसमें कैंसर पेशेंट्स का फ्री ट्रीटमेंट किया जाता है। विप्रो, HCL, दे हैव सेट अप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। सो there are various reasons and the factors which persuade the business enterprise to perform their social responsibilities while developing their बिजनेस, ठीक है। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी बड़ी मैंने बता दी आपको, आप ये भी कह सकते हो मैम दे अर्न करोड्स ऑफ प्रॉफिट, तो अगर वो अपना 1%, 2% सोसाइटी के वेलफेयर में लगा देंगे तो इनकी तो इमेज ही बिल्डअप होगी, ठीक है। तो ऑफ कोर्स यू आर वेरी मच राइट, बट बेटे देयर आर मेनी अदर एंटरप्राइजेस हु हैव टू अज्यूम देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज देयर आर सर्टेन रीजंस, कुछ कारण है, कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिसके करके बिजनेस एंटरप्राइज को आज अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी पड़ती है। सो लेट्स सी व्हाट आर दीज फैक्टर्स। नंबर 1 फैक्टर इज थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन, threat of public
रेगुलेशन। सो बेटे बहुत सारे बिजनेस एंटरप्राइजेस ना चाहते हुए भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम करते हैं, क्योंकि उनको पब्लिक रेगुलेशंस का डर है। गवर्नमेंट अगर वो कुछ भी काम ऐसा करेंगे तो उनके ऊपर कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगे, उनका काम स्मूथली चलता जाए, इसलिए उनको सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर में अपना बिजनेस कंडक्ट करना पड़ता है। ठीक है, अदरवाइज उनको मालूम है कि गवर्नमेंट अगर कोई भी उन्होंने ऐसी एक्टिविटी कर दी जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाती है, तो गवर्नमेंट विल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट देम। सो डू यू वांट, आप एक बिजनेसमैन हो, आप चाहते हो कि आए दिन आपके ऊपर कोई ना कोई बिजनेसमैन जो है, सॉरी गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर इंस्पेक्टर आपके ऊपर खड़ा रहे और आपको तंग करे या आपको कोई पेनल्टी लगा जाए? नो, यू वुड नॉट लाइक दैट, है ना? सो इन ऑर्डर टू safeguard yourself from public regulation, businessman conducts or he does the work in a socially responsible manner. ठीक है, सेकेंड रीजन बनता है बेटे प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट्स। अर्लियर लेबर यूज्ड टू बी अनऑर्गेनाइज्ड, सो लेबर यूज्ड टू बी एक्सप्लॉइटेड। आप अनऑर्गेनाइज्ड हो तो आपको लोग एक्सप्लॉइट करेंगे। ठीक है, जिस तरह से कंज्यूमर यूज्ड टू बी अनऑर्गेनाइज्ड तो ही यूज्ड टू बी एक्सप्लॉइटेड। लेकिन आज लेबर अनऑर्गेनाइज्ड नहीं है, आज लेबर ने अपने आप को यूनियंस में ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि उन्होंने अपने आप को यूनियंस में ऑर्गेनाइज किया हुआ है तो उनका एक यूनियन लीडर भी होता है। तो अगर लेबर को कोई भी प्रॉब्लम आती है, लेबर को मैनेजमेंट एक्सप्लॉइट करती है, तो लेबर अपनी प्रॉब्लम्स ट्रेड यूनियन के लीडर के पास लेके जाता है और वो ट्रेड यूनियन का जो लीडर है वो अपनी प्रॉब्लम्स मैनेजमेंट को कन्वे करता है। अगर मैनेजमेंट उसको कंसिडर नहीं करती है तो दे में स्टूप डाउन टू स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, और स्ट्राइक्स और लॉकआउट से बिजनेस का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो इसीलिए उनको इस बात का पता है कि आज लेबर स्ट्रांग है और उनके ऊपर लेबर मूवमेंट का प्रेशर है, तो इसीलिए वो लेबर को एक्सप्लॉइट नहीं करते, यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करते हैं। ठीक है बच्चे, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। रेस्ट टाइम इज अप, रेस्ट वी विल डिस्कस टुमारो। एनीवन हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क।